Very good evening to all. Welcome to another session on holistic health. Purpose of this session is to discuss with experts from various fields working on natural health and be aware that we need to respect the best gift to us by universe is our body. We all wish to be healthy, wealthy and happy, but don't know how to manage the natural well-being. We all know the five elements. Nature, earth, water, fire, air, and space has a close relationship with human body. Maintaining the balance of these elements the key of healthy life today. Now, I am Ekta Gupta, founder of Parijay Genus, and I was a housewife who started her journey with the mission Every Corner Needs a Plant and gave birth to Parijay Genus Private Limited in April 2017 and Mool Srishti Foundation in September 2022 with the vision of bringing people close to the nature and promoting the Go Green concept by connecting environment to employment. Our focus is on environment, women employment. Our goal is to provide the living wages and human working conditions to our artists. Holistic health is our effort to motivate the natural well-being through our diet, through exercises, and through our mental health. So there are the few instructions for the audience. Please kindly mute your microphones. In case of microphone is not mute, it will be done by the admin. Q&A session questions will be taken in the chat box. Moderator will read out the questions on the panelist. Now it's time to welcome our today's panelist, our today's speaker, Mrs. Taran Singla. She is Director of Diet Fitness, a fitness and wellness brand operating in India, Canada, Australia, Germany, and Japan. We provide quantified nutrition-based customized diet food plans, a certified advanced clinical nutritionist, and certified exercise science specialist. Her forte is dealing with NCDs like hypertension, thyroid, PCOD, PCOS, diabetes, and antenatal nutrition. So, welcome, Mrs. Taran Singla. Good evening, and thank you so much, Ekta ma'am, for inviting me again. And it has been always so lovely to attend, these sessions with you. Thank you so much. Hi, Pranjal. I think Pranjal is also joined. Yes, yes. Hello, Pranjal. It's my privilege. I hope all won't mind. I have a little bad throat, so I might be coughing in between. So, Everyone nowadays is going through the same story. yeah. So, it's a very bad cold these days. So, Taranji, as we have today's topic, that holistic nutrition for the students. So, first of all, before starting the session, I would like to know about you, that how you started this journey and what motivated you to be in this field. Sure, Ekta. I would really love to share my story with all of you. And as we are live on the Facebook, see, initially working, I came from a altogether different background. I hold a double postgrad degree in commerce and had a brief stint as lecturer also. But a point came where, I was, I started suffering. Uh, Hypertension का पेशेंट बन गई, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया, प्री डायबिटिक हो गए, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा और इरिटेटिंग नेचर, ये सारा कुछ, ओवरवेट ऑलवेज कम्स अलोंग इट्स, इट जस्ट ब्रिंग्स अलोंग इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विच आई कॉल. तो अब उसमें क्या होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स डिले शुरू हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपके वेलबींग, मेंटल एंड एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती हैं. दिस इज समथिंग वेरी बेसिक एंड कॉमनली सीन. Now, when this point came, I was just into my mid 30s. और 30s ऐसा टाइम होता है कि एक कहते हैं ना, एक ऐसा पीरियड होता है, या तो आप नैया पार लगा लेंगे या डुबा लेंगे. ठीक है. सो देन डेफिनेटली देयर वाज अ पुश फ्रॉम माय ओन ब्रदर विच आई रियली एवरी टाइम मेंशन कि भाई ये ठीक टाइम है, तुम संभल जाओ. क्योंकि आपकी जब दवाइयां शुरू हो जाती हैं, दैट गॉड एज वेल एज द नेचर इज गिविंग यू अ वार्निंग कि अभी समझ जाओ. कुछ चीजें रिवर्स कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है. अब हाइपरटेंशन को रिवर्स कर सकते हैं, मेडिसिन फ्री हो सकते हैं. ठीक है. इसी के साथ अगर आप टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज क्योर हो जाती है, मतलब क्योर माने आप रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है जी. Then comes the case of pregnant ladies.
I'm already working along with a very renowned mother and child care hospital and heading their dietetics and nutrition. तो वहां पे हमारे पास सारे केसेस जैसे GDM आता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, डायबिटीज मिलेटस आ जाता है, ये सारी चीजें आप फेस करते हैं. नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन आई वेंट अहेड एंड दोबारा से किताबें खुली, इनरोल करा, पेपर्स क्लियर करे, एंड दैट वाज द टाइम जब अपना मॉडिफिकेशन स्टार्ट करा. सो विद द हेल्प ऑफ दैट एजुकेशन, आई वाज माई ओन गिनी पिग. तो वो चीजें रिवर्स करी. आई एम कंप्लीटली मेडिसिन फ्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. कोई डायबिटीज हाइपरटेंशन कुछ नहीं है. एंड इन द पैसेज ऑफ टाइम अलोंग विद दैट एडवांस क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का जो हमने सर्टिफिकेशंस करी, उसी के साथ I did my exercise science specialist also. Now I am well versed with that thing. कौन से एज ग्रुप को क्या एक्सरसाइजेस देनी है, क्योंकि सब इट्स नॉट नॉर्मल पीपल हु आर अप्रोचिंग मी मोस्ट ऑफ द टाइम. आपका हाय सुखजीत, गुड इवनिंग. सो शी वाज वन ऑफ माय एंटीनेटल पेशेंट. सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली हेल्पिंग द प्रेग्नेंट वुमेन, यंगस्टर्स, ओल्ड क्लाइंट एज. एकता जी, जैसे आपको पता है 33 में हमें काफी डिफेंस ऑफिसर्स मिलते हैं, तो वो कई बार अप्रोच करते हैं फॉर दैट एज रिलेटेड. नाउ माय रिसेंट क्लाइंट इज 67 ईयर ओल्ड मैम. तो अब एक 67 ईयर ओल्ड बंदा जो हिलता ही नहीं है, एक एंजॉय करता है अपना सो कॉल्ड अडल्ट या एक मेच्योर एज जिसको हम कहेंगे, उनको वो एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करनी, वो डेफिनेटली हम यंगस्टर्स के साथ नहीं उनका स्टेमिना मैच कर सकते. सो दीज आर द स्पेशल एज ग्रुप्स जिनको उनके हिसाब से एक्सरसाइजेस एंड न्यूट्रिशनल गाइडेंस देना. सो दिस इज माई स्टोरी फ्रॉम अ सो कॉल्ड होम मेकर. सो आई हैव shifted towards modifying lives. Yeah, so that's the wonderful thing, that healing to herself and then motivating the others and guiding the others to motivate to be healthy. And Right. that is also through the diet and the exercise. And that is the wonderful thing that I think that nowadays is the need of our. So, yeah. Now coming back to our session, that how as now we all know that these days students have a lot of pressure, not on during the exams days, even in the normal routine. We actually we parents are so conscious that that the children should run a race of marks, scholar, intellectual, and there is a race. So now when the exams are just approaching, so what I feel that during these days, their physical activity reduces as compared to the normal days. So how this can this gap of reduction in decrease in this physical activities can be covered up with the healthy diet, so Right. that that can maintain their mental, because mental stress is also a very a big issue during these days. So how a healthy diet and balanced diet can maintain their physical as well as the mental balance. Right. This is very, very important questions because I myself am a mother of two kids and दोनों की exams approach करने वाले हैं in a month or so, right? And see, आपका बच्चा बोर्ड्स में कर रहा है, एग्जाम के लिए दे रहा है, या अदरवाइज ऑल्सो द स्ट्रेस ऑफ एजुकेशन इज टू मच नाउअडेज, स्पेशली एग्जाम्स के रिलेटेड. और ये भी बात सही है, कुछ तो वेदर इज नॉट टू फ्रेंडली नाउअडेज, उसके ऊपर से एग्जाम्स. तो व्हाट वी ऑल से, घर के अंदर बैठ जा भाई, रजाई में लेके पढ़ाई कर लो, हीटर चला लो, ऑल दैट थिंग्स. तो इसमें ना सबसे पहले एज अ मदर हम लोगों को, एंड इवन एज अ फादर, हम लोगों को ये चाहिए कि बच्चों को ना अननेसेसरी कैलोरी से ओवरलोड ना करें. जो एक मैनेजमेंट के लिए जो कैलोरीज चाहिए, एक तो वही चलाते रहे. एग्जाम्स को एक्सक्यूज ना बनाएं उनको अननेसेसरी पिन्नियां पंजीरियां पुग्गे इनसे लोड करने की. ठीक है. और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें. बड़े सारे हेल्दी ड्रिंक्स हैं, वो मैं आगे हम सेशन में शेयर करेंगे. अब उनको जो मेन स्ट्रीम आपको फीड करना है, उनको गजरेले या इन चीजों को छोड़ के फीड देम विद गुड प्रोटीन डाइट. लोड देयर सिस्टम विद प्रोटीन्स.
नाश्ते में, लंच में, डिनर में। वो प्रोटीन क्या करेगा, उनको एक तो सोने नहीं देगा, ठीक है जी, क्योंकि जैसे ही हमने देसी घी के परांठे दिए हैं ना बच्चों को, उन्होंने साथ ही सोना शुरू कर देना है। तो वो पढ़ाई कब करेंगे? ठीक है। वो ये सब चीजों को, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फ्राइड फूड इन विंटर्स, जो कि हम सबको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, उन चीजों को रिड्यूस करें। कुछ हेल्दी बनाने की बात करें, कुछ ऐसी चीजें हेल्दी स्नैकिंग की बात करें, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं इन सीजनल डिलाइट्स के, ठीक है, बट ऐसा वाला काम करेंगे उस टाइम पे दे जब आपको लग रहा है कि अगर आप बच्चे ने थोड़ी देर सोना है तो सो जाए, ठीक है जी। सो दिस इज माई टेक। या दैट्स द वंडरफुल थिंग। एंड अभी तो हमने बात की कि उनकी डाइट कैसा होना चाहिए, एंड कैसे उनको एक हम लोग हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट दें। सो व्हाट द शॉर्ट एक्सरसाइजेस, यू नो, सिटिंग्स बढ़ जाती हैं, रजाई में है, नींद आती है, तो वही जैसे आप कह रहे हैं कि शुगरी डाइट है, हाई कार्ब्स डाइट है, तो उससे क्या होता है कि उनको नींद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक तो वैसे ही एग्जाम्स क्लियर होता है, एंड ऊपर से फिर जब हम इस तरह की हैवी डाइट्स लेते हैं तो नींद बहुत ज्यादा आती है। सो कैन यू सजेस्ट सम शॉर्ट एक्सरसाइजेज और सम यू नो द शॉर्ट ब्रेक्स, and as राइट, well as during this season what can be the liquid healthy liquid diet? राइट, डेफिनेटली। रादर ये तो कॉल ऑफ द मोमेंट है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए कि आप डेलिबरेटली, कई बार बच्चे नहीं भी करते, तो आप जाएं या बच्चों को ऐसे ट्यून अप कर दें कि आपने आधे घंटे के बाद उठना ही है। आप देखेंगे एक जगह पे बैठ के, स्पेसिफिकली इन फ्रंट ऑफ हीटर एंड क्विल्ट में जब आप बैठे हैं, एक बड़ा मजा तो बड़ा आता है बैठ के, बट दैट इज एक्चुअली नॉट एट ऑल हेल्दी। जब आप वो निग्गे हो जाते हैं ना जी, हीट एक टेम्परेचर आपको बड़ा अच्छा मिलता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद 100% है आप सो भी जाएंगे। तो उसके लिए आधे घंटे के बाद बच्चे को उठा दें और उनको बोले जरा घर का एक राउंड लगा के आए, और जस्ट अ 5 minutes वॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वॉट योर चाइल्ड कैन डू, दे कैन डू, जिसको हम योगा में बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, जैसे हल्का सा नेक रोटेट कर लिया, दिस विल हेल्प देम। या हम शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, बच्चे का बैठे बैठे, बहुत सारा आपने देखा होगा बच्चे बैठे बैठे ना हंच हो जाता है, हंच बैक बन जाता है। ये जो आपका बैक है, ये थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना कुब्बा हो गया, पंजाबी च बोलते हैं, तो वो चीज होनी शुरू हो जाती है, शोल्डर्स स्लाउच करने लग जाते हैं बच्चे। तो वो चीज ठीक करनी है। एक तो उनका पोस्चर करेक्शन बहुत अफेक्ट करता है पढ़ाई के टाइम, एज वी ऑलवेज डील इन, जब हम हीलिंग्स या स्पिरिचुअल हीलिंग्स में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा उसका भी बीच में एस्पेक्ट ले रही हूँ कि आपके चक्रास जो है, एनर्जीज जो है, वो अलाइन हो जाती हैं जब आप सीधे बैठते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, राइट। इसी के साथ उनको छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने हल्का सा नेक रोटेशन बोला, शोल्डर रोटेशन बोला, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, उनको आदत डाल दें, 1 घंटे के बाद तुम्हें उठना ही है बेटा। सो व्हेन दीज थिंग्स आर देयर, एंड मेक श्योर द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग वाटर, चाहे वो फ्लेवर कर दीजिए थोड़ा सा उसको, कुछ भी करिए, पानी का इंटेक, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगर इसमें मैं, इसमें आपको छोटी सी एडिशन भी यहीं पे करूंगी, कई बार हम अपनी प्यास को भूख से कैमोफ्लेज कर जाते हैं। ठंड की वजह से हमारा वाटर इनटेक तो वैसे ही एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन हमारी भूख भी, हम जो प्यास लगती है उसको कॉम्प्रोमाइज करते क्या, कुछ और खा लिया, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी सी गच्चक, ये तो बड़ी हैंडी रहती है सबके घरों में। तो यहाँ पे ये भी गड़बड़ होती है। एंड मेक श्योर उनको पक्का पक्का आप उठाइए थोड़ी देर के लिए। सो दीज आर कॉल्ड सूक्ष्म व्यायाम, या छोटी छोटी एक्सरसाइजेस विच दे शुड डू। Yeah. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की, एक्सरसाइजेस की, क्या ये एज फैक्टर पर भी डिपेंड करती हैं कि बच्चे की कितनी एज है? तो क्योंकि हमारे पास छोटे प्राइमरी स्टूडेंट्स भी हैं, और जो भी, बिकॉज वी वांट टू मेक दिस कॉमन सेशन, कि हमारे पास किंडरगार्टन स्टूडेंट्स भी हैं, उनके भी सेम टाइम पे एग्जाम्स हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स भी हैं, एंड देन हायर लेवल हायर क्लासेस भी हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं। सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दैट व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन देयर डाइट पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे चाइल्ड, टीनेजर्स, एंड देन द यंगस्टर, adults? So what should be the, is there any difference? यस, सबसे पहले तो जो मैं ये आपको ये बोलूंगी
कि जो प्रोटीन की बात करें, जो कि बेस रहता है सबकी डाइट का, तो प्रोटीन का बड़ा सीधा सा फंडा है जी। मतलब इट्स लाइक 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। जो बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा उसको इतना तो आपने देना ही है। आप सब फर्ज कर लीजिए 40 किलो का बच्चा है, तो आपको उसको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन तो देना है। वीगन सोर्सेज से उठाइए, वेजिटेरियन सोर्सेज से उठाइए, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से उठाइए, तो इतना प्रोटीन हर हालत में देना है। 1 ग्राम तक भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मतलब कई अब कई बार पेरेंट्स इतना ज्यादा मेजरिंग में नहीं जा सकते, तो बड़ा सीधी सी बात है कि 0.5 ग्राम टू 8 ग्राम, पॉइंट 0.8 ग्राम प्रोटीन आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है जी। WHO की लेटेस्ट जो अपडेट थी उसका कहना यह है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए, ऑलमोस्ट फॉर एवरी एजेस, अनलेस एंड अनटिल दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम CKD, दैट इज क्रॉनिक या सम किडनी डिसऑर्डर या डिजीज। उनकी अलग होती है, उनकी अलाउंसेस अलग हैं प्रोटीन की, ये तो रखिए। बाकी रही बात कार्बोहाइड्रेट की, कार्ब हमारा थोड़ा मीडियम ही रहना चाहिए, ओवर द बोर्ड नहीं जाना चाहिए। एंड फैट बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करें सिस्टम को फैट से। 20-30 ग्राम टोटल जो हम कह सकते हैं, कोई भी आप फैट यूज करें, आई थिंक 20 ग्राम फैट दैट कम्स आउट टू बी 4 स्पून्स ऑफ मे बी देसी घी, मे बी योर सरसों का तेल, तिल का तेल, सेसमे ऑयल। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं सिर्फ कुकिंग या ऊपर डालने के लिए। अननेसेसरी बच्चों के खाने में तेल नहीं डालने की या घी डालने की जरूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं एक छोटी सी यहाँ पे बात, कि उनको हम ठीक है, हम वो जैसे हमारे थोड़ा नॉर्थ में रहता है कि यू नो गाजरों का जूस निकाल दिया फटाफट, ये सब ट्राई देम कि वो एक प्लेट भर के वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मील दे दीजिए उनको, उससे शुगर रश भी नहीं होगा। दे विल नॉट फील दैट एंजाइटी या भागने का मन नहीं करेगा। वो अच्छे से खाएंगे, फाइबर इनटेक भी हो जाएगा। जब आप फल खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेस में शुगर्स भी नहीं जा रही और फाइबर इनटेक भी हो गया, एंड दैट्स फिलिंग ऑल्सो। सो ये चीज रहेगी साथ में। जी। सो जैसे अभी हमने ऑयल्स की बात की, ठीक है, देसी घी, सीजम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। सो जैसे अभी तो वी आर बैक टू दिस ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, इस पे हम वापस आ रहे हैं। बट पहले जो है वो अभी रिफाइंड ऑयल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। एक टाइम पीरियड था जब रिफाइंड ऑयल्स बहुत यूज है, बट नाउ अगेन बैक, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, एवरीबडी इज सजेस्टिंग दैट रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। So, what's your thought on this? देखिए, बहुत ही मजबूरी है तो अलग बात है। तो आई एम अ वेरी व्हाट से, मैं बड़ी इंडिजीनियस देसी बंदा हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि जो चीजें हमारी रूट से निकली है ना, वो हमारे DNA में इम्बाइब्ड होती हैं। आपको रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं, चावल छोड़ने की जरूरत नहीं। अब आगे थोड़ा लाइन अलग हो गई, बट ऑयल्स की बात करें तो जितना भी अपना देसी घी है, ठीक है, सरसों का तेल है, सेसमे ऑयल है, और बहुत सारे तेल जो हमें इंडिजीनियस और रीजनल मिलते हैं, उनको यूज करें। रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड एक्चुअली। ठीक है जी। उसका प्रॉब्लम ये रहता है कि जब रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें काफी सारे केमिकल्स यूज होते हैं इनको क्लीन करने के लिए, इनको फाइनल जो इनकी एक प्रोडक्ट बनने में, उसके दौरान वो जो केमिकल्स ऐड हुए, यूज हुए, वो दे आर नॉट एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ, एंड दे आर सपोज टू कॉज इन्फ्लेमेशन, जोड़ों का दर्द, ये सब चीजें। और भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, वो मैं आप यहाँ नहीं, इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। तो दैट इज द एक काइंड ऑफ नुकसानदेह होती है हमारे लिए। सो जी जी। बी इंडियन, यूज इंडियन। यस यस। सो यस। जैसे हम ऑयल्स की बात करें तो ऑयल्स की क्वांटिटी एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं कि जब आप कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमारे जैसे पंजाबियों में, हमारी इंडियन किचन्स में क्या होता है कि खूब लहसुन ये सब कुछ डाल के खूब अच्छे से उनको भूना जाता है ऑयल के अंदर या। सो व्हाट डू यू थिंक, जैसे मस्टर्ड ऑयल है और है, तो क्या इन जब हम कुक करते हैं तो क्या इन ऑयल्स पे, जैसे हम फ्लेम्स हैं और हैं, क्या वो इट्स इज इट अ मिथ और इज इट अ रियलिटी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खराब होते हैं ऑयल की क्वालिटी में? जैसे देसी घी में हम लोग तड़का बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या उनसे उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू में कुछ डिफरेंसेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं।
देखिए, अगर कोई चीज, पहले दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि कुछ चीजें रीहीटिंग के लिए नहीं बनी। जैसे आप, सरसों का तेल है, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। सरसों का तेल अक्सर घरों में यूज होता है, उसको जला के स्मोक निकाल के फिर यूज करते हैं ठंडा करके। ये आप इसको क्रॉस लगा दें, ये पॉइजनस हो गया, कार्सिनोजेनिक हो गया, दिस कैन लीड टू कॉजिंग कैंसर्स। तो जब भी आप सरसों का तेल यूज करें, आई आई नो उसका टेस्ट आता है थोड़ा कच्चेपन का, वही खाने के लिए ये जरूरी है। जिस चीज का स्मोक पॉइंट आपने कर दिया, निकाल दिया, घी जला दिया, सरसों का तेल जला दिया, वो खत्म हो चुके हैं। उनमें कुकिंग करेंगे तो आपका सामान सब खत्म है, खराब है, तो वो खाने के लिए नहीं बना, पहली बात। सेकेंडली, जब हम एक रीहीटेड, मतलब पूड़ियां निकाली, पकौड़े बनाए, वो तेल ठंडा करके संभाल के रख दिया छान के, ठीक है, दोबारा दोबारा यूज करने के लिए नहीं, वो भी गलत है, उसको भी आपको थ्रो करना है। वो जल चुका है, इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यूजिंग। तो इसमें जो कुकिंग होगी वो भी खराब है, फिर आप जो मर्जी ऑयल यूज कर ले। ठीक है जी। दूसरी बात, जब हम अपनी कुकिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देसी घी, अब कौन सी कुकिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है कि कौन सा ऑयल आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल नहीं, मतलब कुकिंग मीडियम, देसी घी का जो बर्निंग पॉइंट है या स्मोकिंग पॉइंट है वो हाई रहता है। तो वो आप तड़कों में यूज कर सकती हैं, जहां पे हमें पता है कि थोड़ा ज्यादा भूनना है, तो आप यूज करें उसको सेफली, देसी घी को। पर काइंडली ये ध्यान रखें, ये नहीं कि आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो सब हेल्दी हो जाएगा। देसी घी भी ज्यादा यूज करेंगे वो भी खराब है, सरसों का तेल, तिल का तेल, कुछ भी आप यूज करेंगे वो सब खराब है, बियॉन्ड अ पॉइंट। क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स, क्वालिटी के साथ साथ। ऐसे ही जहां आपने फ्राइंग करनी है तो सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब्जी बनानी है तो भी आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकती हैं, तो उनमें कुकिंग वाकई अच्छी होती है। जी। सो मैं यहाँ पर अभी मेरे पास एक वर्ड आ रहा था, स्ट्रेस ईटिंग। यस। राइट। जो स्ट्रेस ईटिंग क्या होता है कि इवन आफ्टर फुल वी गॉट दैट क्रेविंग्स ऑफ ये नहीं कुछ खाना है, एंड इस टाइम पे जो स्ट्रेस लेवल वैसे ही बहुत हाई होता है। सो हाउ टू कंट्रोल दैट टेम्पटेशन ड्यू टू द स्ट्रेस? हमें कैसे पता चले कि हमारी ये नेचुरली हमें भूख लग रही है, और इट इज अ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, और हाउ टू कंट्रोल दैट स्ट्रेस ईटिंग? ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है और बड़े केसेस आते हैं हमारे पास स्ट्रेस ईटिंग, पेन ईटिंग को लेके। ठीक है, मैम पेट भरा हुआ था, मेरे को टेंशन हो गई, मैंने ना चॉकलेट उठाई खा ली, ठीक है, चिप्स का पैकेट उठाया खा लिया, या कुछ भी, दीज आर द कॉमन थिंग्स, ओरियो का पैकेट खत्म कर दिया, ठीक है। ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं बड़ों की बात भी कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका क्या है, सबसे पहले तो ना आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, एक आपको लेके आना पड़ेगा, थोड़ा ठहराव, रूट कॉज फाइंड करें स्ट्रेस का, कि स्ट्रेस किस लिए हो रहा है। अगर बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है तो आप बच्चे के साथ बात करें, उस स्ट्रेस को रिमूव करने की कोशिश करें, या उसका थोड़ा सा उसको दिलासा दें, जैसे भी आप एज अ पेरेंट दे सकते हैं, एज अ टीचर दे सकते हैं, एज अ गाइड दे सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रेस ईटिंग को हमने कॉम्पनसेट करना है या रिप्लेस करना है विद हेल्दी ऑप्शंस। पहले तो उसको बोलेंगे अगर तेरे को ऐसा कुछ लग रहा है, पानी का ग्लास पी जाके, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, कई बार आप देखें धीरे धीरे जब आप पानी पीते हैं ना, आपकी बहुत सारी चीजें वहीं पे शांत होने लग जाती हैं। यू मस्ट रियलाइज दिस थिंग, ठीक है। हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, आप प्रोटीन बार घर में रख लीजिए, कुकीज रख लीजिए, प्रोटीन कुकीज, पेट तो भरता ही है, कुछ नुकसान नहीं होगा, ज्यादा थोड़ी कैलोरीज चली गई कोई बात नहीं, एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ी कुछ चीजें अलाउंस देना भी पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हेल्दी ऑप्शंस में आप जो भी रूटीन है, नट्स रख सकते हैं, फ्राई करके नहीं, ड्राई रोस्ट करके, ठीक है जी। ऐसी बहुत सी फिलिंग चीजें हैं जो कि आप घर में आप बना के रख सकती हैं, या मार्केट से भी आप परचेज कर सकती हैं, जो रादर फिलिंग ज्यादा है, फाइबरस ज्यादा है, लेकिन कैलोरीज उनकी कम है। तो एक तो ये तरीका है। एंड जैसे आप खुद भी, एकता जी, काफी हद तक स्पिरिचुअल हैं, और आई नो यूज फॉर सो लॉन्ग, मेडिटेशन, मेडिटेशन करने की या स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती। आई हैव सीन यंग पीपल डूइंग मेडिटेशन
एंड ओल्ड ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है। सो जितना आप इनकलकेट कर सकते हैं ये चीज बच्चों में, उतना ही ज्यादा फायदा रहता है। क्योंकि अभी तो दे आर यंग, वो जो आप उनको रास्ता दिखा देंगी ना, वो उस पे दे विल स्टार्ट वॉकिंग। तो बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों को, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं जिंदगी में, कई बार लोज भी आते हैं। तो वहां ये बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस करने की जो है तरीका, वो बहुत फायदा करता है। सो दीज आर माई आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। जी, so it's really wonderful talking to you and माइंड में एक के बाद एक थॉट्स आती चली जा रही हैं जैसे जैसे आपके साथ बातें हो रही हैं। सो जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रेस ईटिंग और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो अभी मिस्टर हरप्रीत सिंह हैज अ क्वेश्चन दैट मैम प्लीज टेल समथिंग सम डाइट फॉर द यंग गाइज। अब सर यंग गाइस, कौन सी एज के यंग गाइस? ये सेशन हमारा बच्चों का है। इट्स जी। फॉर हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी एकता जी। yes, Harpreet ji, can you please answer in the chat box? So I will read out the question for you. तरन जी, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स ये स्ट्रेस ईटिंग जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो कई बार इससे भी मैनेज हो जाती है कि कोई हमसे कोई बात नहीं करे, कोई हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दे एंड सिंपली बस कोई पास में बैठ जाए। सो आई यस। थिंक एट दैट टाइम हमारे जो जैसे अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं तो ये इश्यूज रहते हैं कि पेरेंट्स आर बिजी एंड इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते। तो ऐसे टाइम पे आई फील कि अगर जॉइंट फैमिलीज हों उस टाइम पे ग्रैंड पेरेंट्स एंड इससे साथ में हो तो शायद ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बच्चों के लिए इजी वे आउट हो सकता है, क्योंकि उनको यूजुअली क्या होता है कि जस्ट कोई हो पास में। ओ, वेरी राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि अगर या आप कभी पीछे देखें, हम लोग भी ऐसे ही सिचुएशन से निकले हैं। हमें भी बड़ी बिल्कुल। एंजाइटी होती थी, एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है। या आज की डेट में भी आप देखिए, हम लोग के पेरेंट्स कितने बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी आज की डेट में भी हमें होता है कि नहीं, थोड़ी सी एक बार बात कर ले तो हम बहुत ज्यादा सुकून फील करते हैं। सो ये एक इम्बाइब्ड चीज है, इसको हम मतलब बहुत बढ़िया आपने बात करी कि कई बार सिर्फ बैठने से या थोड़ी सी बात सुन लेने से बहुत फर्क पड़ जाता है बच्चों के स्टेट ऑफ माइंड में। Yes, without any judgment, without any suggestions, just simple, soft touch of assurance that आप जो भी करोगे बेटा, जो भी रिजल्ट होगा, that is the best. तो वी आर ऑलवेज विद यू, है ना। तो Right. माँ बाप का प्यार और जो है वो इन रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है एंड जो मार्क्स हैं वो किसी भी सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। तो Absolutely. सक्सेस पैरामीटर है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, अपनी जिंदगी में आप कितना अपने फेस पे स्माइल और खुशी खुशी हेल्दी एक लाइफ जी सकते हैं, दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर। सो नाउ हरप्रीत जी इज आस्किंग दैट द एज बिटवीन 20 to 25 years. Okay, so diet plan for a guy or like boys, like जो आप 20 to 25 ईयर्स के बीच में। देखिए हरप्रीत, इसमें बेसिकली यही रहता है कि हमने जो पहले भी बात करी, अब एक बहुत सारी चीजें ये डिपेंड करती है कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ वर्क आउट, या उनका लाइफस्टाइल क्या है, एक्टिव है, सेडेंट्री है, या मॉडरेट सा है, या उनको कोई कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं फेस हो रहे। ठीक है। मैं आपको यहाँ ऐसे ही बता दूं कि हाँ जी, इतना प्रोटीन दे दीजिए, इतना कार्ब्स दे दीजिए, 2 अंडे खा लीजिए, चिल्ला खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए, चपाती छोड़ दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो इसका बेसिक तो ये है हाउ एक्चुअली वी ऑल्सो वर्क, आफ्टर गेटिंग द डिटेल्स ऑफ अ पर्सन, राइट, वी डू फ्यू कैलकुलेशंस, ये सब देखने के लिए कि वो कितना एक्टिव है, क्या उनकी फूड चॉइसेस रही हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, अदरवाइज ऑल्सो पढ़ाई है, उसके अलावा क्या ऑक्यूपेशन है, हाउ अ पर्सन इज स्पेंडिंग द लाइफ, ओनली देन वी कैन सजेस्ट। अब ऐसा ना हो बंदा पहले से बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहा है। ठीक है। क्योंकि आजकल ये भी बहुत फैशन में है, हर बंदा ने उठाया वे का डब्बा खरीदा और खा लिया कि हमने सुना प्रोटीन खाने से जादू हो जाएगा। प्रोटीन खाने से जादू नहीं होता है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और डेफिनेटली आई अग्री, लेकिन अगर आप ट्राई करें तो आपको किचन की, मैं आई माई सेल्फ आई डू कंज्यूम वे और आइसो, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स। अगर आप अपनी किचन की शेल्फ में से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत है। वी नेवर फॉरवर्ड दीज थिंग्स टू आवर क्लाइंट्स के भाई तुम इस कंपनी का ब्रांड का इसका खा लो या उसका खा लो, ऐसा वाला कुछ नहीं है। सो एंड कितना वर्कआउट वो कर रहा है, कितना एक्सरसाइज वो बच्चा कर रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसकी एक्सरसाइज कुछ नहीं है तो फिर उसकी कैलोरीज भी उतनी डिपेंड करती हैं। अगर वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, वी नीड टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीएमआर एंड टीडी, ठीक है, बहुत कुछ टेक्निकल चीजें हैं। तो बेसिकली वो चीजें निकालनी इट टेक्स टाइम। तो आइडियली वही है, प्रोटीन अच्छा रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स इन बिटवीन रखिए एंड फैट्स मिनिमलिस्टिक रखिए। उनको निकालना नहीं है फैट्स को, ये नहीं है कि आपने फैट बिल्कुल निकाल दिए जी हमने तो कुछ करना ही नहीं है, नो। वी रिक्वायर फैट्स बिकॉज उसी से हमारे हॉर्मोन्स मेटाबलाइज हो रही हैं। जो हमारे विटामिन्स मल्टीविटामिन्स हम खा रहे होते हैं, सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, उनका वो फैट का बेस्ड है ये, ठीक है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए। सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज को एक नपे तुले तरीके से खाना बहुत जरूरी है, एंड दैट कैलकुलेशन, डूइंग दैट दोज थिंग्स इज आवर जॉब, Yeah. ठीक है। So that's a wonderful thing जो आपने कहा कि everything is available in our kitchen. Yes. Our Indian kitchen is rich of every nutrient and just we need to know the actual benefits of all the ration ingredients in our kitchen. Right. So Very right. Indian kitchen has the capability to heal any type of disease. So यहाँ definitely पे I also want. यस यस प्लीज प्लीज, हाँ जी Yes, मैम। please. So I also motivate and appreciate the natural ingredients. So instead of going for the packed foods, which has a lot of chemicals and the preservatives, because we know that कि अगर हम लोग घर में अपने कुछ भी लेकर आते हैं, so hardly वो कुछ ही दिन survive कर सकता है। लेकिन जो हम पैक्ड फूड लेकर आते हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट्स होती हैं। सो हाउ इज यस। इट्स पॉसिबल कि आपका कुक्ड फूड जिसको हम सुबह बना रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं नहीं फ्रेश फ्रेश खाना खा लो, लेकिन हम लोग वो जो कुक्ड पैक्ड फूड होता है उसको हम लोग कई कई महीने 6 6 मंथ किसी की 6 6 मंथ्स तक की एक्सपायरी डेट्स होती हैं या ऐसी होती हैं। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन केमिकल्स हैं उसके अंदर जो कि हमारी बॉडी के लिए डेफिनेटली जो है हेल्दी नहीं है। सो thank you so much for sharing this insight that we should not prefer the packed foods. इमरजेंसी है, जरूरत है, देन इट्स ओके, बट इट शुड नॉट बी द रूटीन। एब्सोल्युटली। सो तरन जी, हरप्रीत जी का आंसर आया है कि ही रन डेली 5 किलोमीटर एंड सिंस लास्ट 1 year he is not consuming any fast food and sugar. So I think that's the wonderful thing. यस। And the 5 things, sugar and मैदा, ऐसी जो वाइट थिंग्स होती हैं, जितना हम इनको रिड्यूस कर लें उतना ही हमारी हेल्थ के लिए ये अच्छा रहता है। एंड ट्राई टू मिनिमाइज द कुक। इज इट व्हाट यू से दैट अगर हम लोग कुक्ड फूड और फ्रेश सैलेड्स फ्रूट्स में व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस, कुक्ड वंस और द रॉ वंस? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्वेरीज आती है मैडम मैं तो प्लेट भर के सलाद का खा लेती हूँ और मैं आई स्किप माई। देखो एक चीज ना हमें समझनी पड़ेगी, इट इज नॉट ऑलवेज दैट कि सिर्फ कुक्ड फूड या रॉ फूड, इनमें से ईदर इज बेटर। अब कई चीजें हैं जो कुकिंग के बाद वो उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बेटर होता है। दिस वर्ड इज बायो अवेलेबिलिटी। अब आप कुछ खा रही हैं, नेक्स्ट डे वो निकल जाएगा, थ्रू योर एक्सक्रेटा, वो बॉडी से निकल जाएगा, बट कई चीजों का एब्सॉर्प्शन कुकिंग के बाद बेटर होता है, जैसे टमेटोज। टमाटर कुक होने के बाद ज्यादा बेटर हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहता है। फॉर दैट रीजन ये चीज बहुत पहले WHO ने बताई थी उनकी रिसर्च में कि अगर आप 2 चम्मच सॉस के खाते हैं इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी। टमेटो सॉस, टमेटो केचप, यस। सो इसी तरीके से और बहुत सारे फूड्स हैं जिनको कच्चा खाने की बजाय, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकली है, ब्रोकली को अगर आप ऐसे खाने की कोशिश करेंगे पार बॉइल्ड या हल्का सा, दैट माइट कॉज यू ब्लोटिंग।
वो हमारी बहुत कॉम्पिटेंट, मतलब एक कह लीजिए कि हम उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, ये सब होगी, इंडाइजेशन होगी। सिमिलरली और भी बहुत सारा जो हम सो कॉल्ड सैलेड फूड बोलते हैं ना, जिसको सैलेड्स के लिए जो फूड्स यूज होते हैं, वो उनमें से कई ऐसे हैं जिसको इट इज बेटर कि हम उसको हल्का सा बॉईल दे दें, उसका वो कच्चेपन का तासीर खत्म कर दें कि कच्चा खाना है हमने। ठीक है। सो इट्स ऑलवेज अ मिक्स्ड बैग, नॉट अ सिंगल फूड is healthy cooked way या unhealthy in raw form। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात और ऐड करूंगी, जैसे कई चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक क्यूकम्बर, बड़ी आप शायद इस चीज को शायद आई यू विल टेक क्यूकम्बर, खीरा कितना आसानी से मिलने वाली चीज है और कितना ज्यादा यूज होने वाला है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं उसको रॉ ही खा रही हूँ, खीरा तो हम रॉ ही खाएंगे, आई सडनली स्टार्ट हैविंग ब्लोटिंग, माई बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट्स रॉ फॉर्म। ठीक है। यस। सो इट हैज बीन years आई हैव टेस्टेड एंड ट्राइड। सो इट इज बोथ वेज, कि आपकी बॉडी किसी चीज को रॉ अच्छे से ले लेती है, किसी चीज को कुक्ड। सो दिस अगेन गोज बोथ वेज, कुछ खाने अपने आप में और कुछ आपकी बॉडी का एक्सेप्टेंस लेवल। सो दैट इज इट जी ऑन दिस टॉपिक। Okay. So that means it must be the mix of raw as well as the cooked food, and it depends upon your body type. So we have to judge ourselves that which food is good for our body, cooked, what should be the cooked food for us, and what should be the raw ones. राइट, प्रिसाइसली। Okay, okay, okay. हाँ जी। That's wonderful. And Taran ji, ये वाला जो टाइम पीरियड रहता है ड्यूरिंग दस एग्जाम्स एंड द स्ट्रेस पीरियड्स, सो हमने स्ट्रेस सीटिंग के बारे में बात की या इस तरह से बात की, तो समटाइम्स जो बच्चे रह होते हैं ना वो बहुत सारे कुछ जैसे टीन एज में आ जाते हैं, यंगस्टर्स आ जाते हैं, दे राइट। फील कि नहीं हम लोग अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो हम खाना कम कर दें, वेट पुट ऑन हो जाएगा, बिकॉज यू नो नाउ डेज किड्स आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, एंड दिस वे भी क्या उनमें न्यूट्रिएंट्स की कोई डेफिशिएंसीज या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो वो डाइट के उसमें चले जाते हैं। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ दिस डाइट, as you have already explained that it should be the high proteins or something like that, so any other suggestions that you would like to share on this? बिल्कुल। सबसे पहले तो ना, एक तो जो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो हम डाइट से, वर्कआउट से मैनेज कर लेंगे। 100% डाइट है और 100% ही वर्कआउट है। ये 70 और 30 वाला कॉन्सेप्ट इज आउटडेटेड। आपकी डाइट अच्छी होगी तभी आपकी शक्ल ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके हेयर उनका टेक्सचर ठीक रहेगा। यंगस्टर्स बॉल्ड होने शुरू हो गए, यहाँ से हेयर लाइन उनका रिसीड हो रहा है, गंजापन आ रहा है जवान बच्चों में, बाल झड़ रहे हैं गर्ल्स के, शक्ल खराब हो रही है, रिंकली स्किन हो रही है और अंडर आईज सर्कल्स हो रही हैं। ठीक है। सो सबसे पहली बात तो ये है, आप वर्कआउट करो ना करो, आप कितनी कैलोरीज का, कितना अच्छा मैक्रो एंड माइक्रो कॉम्बिनेशन ले रहे हो, वो बहुत जरूरी है। वर्कआउट करना इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास समय नहीं लग रहा, भाई आप घर में सैर कर लो। बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बता रही हूँ सबके लिए। आप अगर बाहर नहीं जा पा रहे, कोई भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठंड है, आप एग्जाम्स हैं, आप खुद बिजी हैं, तो सिर्फ आप हर मील के बाद 10 मिनट घर में सैर कर लो। इतनी जगह सबके घर में होती है, कुछ नहीं है, आप स्टेयर्स क्लाइंब डाउन कर लो, ऊपर नीचे धीरे धीरे कर लो, वो तो एंटी ग्रेविटी वर्कआउट हो गया, बहुत ही बढ़िया है। सो जब आप 10 मिनट हर खाने के बाद करते हो, तो कम से कम 4 बार आपने दिन में करा, आपका अच्छे से 7 to 8 thousand स्टेप्स हो जाते हैं। सो इससे ज्यादा क्या चाहिए। सो आपका, और अगर इससे भी थोड़ा सा आपको टाइम लगे, ठीक है, तो आप एक पेयर डंबल का घर में ले आइए, नथिंग बीट्स इट। एक पेयर डंबल से कम 10 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा की क्या जरूरत है हमें, है ना। सो जब टाइम लगा 2 सेट्स मार लिए। सो ये एक मोनोटनी को ब्रेक करने का भी एक तरीका हो गया, साथ ही अपने आप को फिट भी रख सकते हो। सो Yeah. So wonderful. Harpreet ji, you can unmute. He has some question. So I will, Harpreet ji, you can unmute yourself and you can ask your question. हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। ओके। मैम,
फिटनेस के लिए एज मैटर करती है? नो, नो एज इज यू नो रॉन्ग एज और राइट एज फॉर फिटनेस। जो भी बंदा जिस भी एज का है उसके लिए वो फिटनेस कभी भी स्टार्ट हो सकती है। हमारे पैनल मेंबर किरण सर, इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है? बाईपास के बाद ही इज रॉकिंग इट। वो मतलब मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ बाईपास सर्जरी के बाद। सो Yes, I completely agree. Today we are missing him. He had the flight, so he was not able to join us today. So, but he is a true inspiration. You can follow him on Facebook by Mr. Kiran Kurvade. I'm just typing his name in the chat box. अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग You can, enthusiasm. yes, you can follow them on Instagram and this Facebook. So he is such a fitness freak, and the even at the age of I think He's about 50. 60, I think. No, 50. 50, okay. So I think we should not discuss the age factor here, You but might yes, mind it. the way he has started that tummy free man and all these things now. So these are the very good titles, and the way he is very conscious and dedicated to his workout regime is really truly inspiration for all of us. So Right. whenever I get बहुत दिन जब नहीं हो पाता workout या किसी ने, even then I get motivated. अरे नहीं, how you see how the Kiran is managing? He has so much Yes. travel, and he never cared that where he is, and he just follow his workout routine. So Yes. that's really a wonderful thing. Today we are missing him. So last moment he had to board the flight, and that's why he was not able to join us today. So thank you so much, Taranji. It's a wonderful session, and Thank you this is so not the much. end. Yeah, this is not the end. We will invite you again with more questions and more topics. So be with us. मैम कल को And now this is सेशन a mass. Yes, I think Thank you to Yeah, thanks to all our audience who has joined us on the live Facebook as well as here on the interactive session. So follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn for the regular updates. And we have the holistic health sessions every fourth Friday at 6 p.m. So where we invite the experts who can share their ideas as well as their tips for the healthy life. Because life is very precious. We are here to live a healthy, happy life. God has given us the opportunity to live and do something meaningful. So it's instead of the crying, complaining, blaming. We should work on our healthy happiness, fitness, and definitely the diet. And one thing I just forgot to ask you, in a lot of discussions, you always talk about the quantified food. yes. So, sorry, in the closing speech, I'm asking you this question. So, I would like to know the meaning of this, the quantified diet. Right. See, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ना, अगर हम रूटीन में देखें तो हमें ये लगता है वेट लूज करना है, पहले तुम दो चपातियां खा लीजिए, फिर हाफ रिमूव कर दीजिए, फिर एक कर दीजिए और उसमें हम ब्रैन ऐड कर दें। हम एक्चुअली जा क्या रहे हैं, हम कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है। एक पॉइंट पे आके आप ऑलमोस्ट अपने सो कॉल्ड डायरेक्ट कार्ब्स जो है वो निकाल देते हैं बॉडी से। बट व्हाट क्वांटिफिकेशन डज इज द होल गेम of getting fit is dependent upon how many calories or what food you're taking in। तो जब हम ये, मैंने आपको पहले भी जैसे जवाब दिया था बात का, तो हम सारी कैलकुलेशंस क्या करते हैं कि आपकी बॉडी को एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की। ठीक है। क्वांटिफिकेशन क्या है, उसी कैलोरीज के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आपको मैक्रो कॉम्बिनेशन, नाउ व्हाट इज मैक्रो, प्रोटीन कार्बन फैट, ठीक है, ये तीनों चीजें कितनी क्वांटिटी में देनी है, सो दैट इज अगेन क्वांटिफिकेशन। और वो कहाँ कहाँ से आएंगी, फॉर एग्जाम्पल अब मैं छोटी सी एक बात बताने लगी हूँ। हम सोसाइटी में ना बड़े वोग में आके हम मिलेट शुरू कर देते हैं, हम मखाने शुरू कर देते हैं अपने रूटीन फूड्स को छोड़ के। दे आर नॉट बैड एट ऑल।
आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट कितनी क्वांटिटी में, आप समझ रहे हैं? मैंने अभी आपको कह दिया आप एग्स खा लीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हरप्रीत का क्वेश्चन था कि मैम क्या डाइट होनी चाहिए, मैंने आपको रूटीन बता दिया, 1800 से 2000 कैलोरी का आप खा लीजिए, ठीक है, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कई क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मैडम हम ना मखाने खाते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं, कैल्शियम की बड़ी अच्छी सोर्स है। आई अग्री, प्रोटीन की सोर्स नहीं है। लोग उनको इन ये चीजें दे आर कैमोफ्लेज फूड्स, उनका टाइटल चेंज कर दिया, वी आर टेकिंग इन लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द वे ऑफ मखाना, ठीक है। तो एंड में क्वांटिटी मैटर करती है। मैं अपनी चाय चीनी वाली पीती हूँ, कोई बात नहीं, मेरी उसमें फिक्स हो रही है। चीनी की एक चम्मच में सिर्फ 20 कैलोरीज हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म मी। यही मैंने एंड ऑफ द डे और सब सामान खा लिया, मेरा एंड ऑफ द डे में कैलोरीज बढ़ गई, मतलब मैं अगर 1500 कैलोरी मुझे चाहिए, मैंने खा ली है कम से कम 2000 कैलोरी, ठीक है। दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द सिनेरियो। तो ये क्वांटिफिकेशन का मतलब ही ये है कि कितनी कितनी क्वांटिटीज में आपको क्या क्या खाना है। दैट्स इट Yeah. जी। हाँ जी। There is one more question that peanuts say एक heat up whenever we have the peanuts, so we get that heat up type of feelings. So what can be the reason for that? हाँ, So ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अ, हर खाने की अपनी कुछ कैलोरीज होती हैं, ठीक है। हर खाना आपको खाने के बाद कितनी एनर्जी देगा वो, अब वो इफेक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब कई बार आप फॉर एग्जांपल पीनट्स को हम बेसिकली नट्स में ही लेते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ, आप उसके साथ पानी कंज्यूम करें तो आपको ये सब फीलिंग ज्यादा नहीं आएगी, इट इज जस्ट कि कितना उसने एनर्जी प्रोड्यूस करा। अब कई लोग क्या करते हैं, हमने इतनी सी मूंगफली खाई थी भाई, इतनी सी 100-200 ग्राम मूंगफली में पता है आपको 400 के करीब कैलोरीज हो जाएंगी। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल आप 200 ग्राम्स ऑफ मशरूम्स खा लें, आपको हार्डली 36-40 कैलोरीज मिलनी है, इससे ऊपर नहीं जाएंगी। या आप कोई भी ग्रीन वेजी खा रहे हैं 200 ग्राम्स, तो वो बहुत थोड़ी सी होगी, तो हमें लगता है बड़ी ठंडक मिल रही है खा के, ठीक है। वेर एज इफ यू टेक इन 200 ग्राम्स ऑफ फिश, लीन लीन प्रोटीन सोर्सेज, चिकन ले लिया, यू विल गेट अराउंड 300 to 400 कैलोरीज। 200 ग्राम ही है ना, 200 ग्राम सब्जी और 200 ग्राम नॉन वेजिटेरियन फूड, आप समझ रहे हैं? तो हमें लगता है नॉनवेज खा के हमें बहुत गर्मी मिल रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट गरमाइश जो हम बात करते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट। okay. Yeah, so it's the time to close the session. So ये time बहुत कम है ऐसे discussions के लिए. And anybody who would like to contact Taranji for their diet plans and for their fitness consultation, they can leave their messages in the link, because this session is live on Facebook also. They can leave their messages there and we will pass on to her. So thank you Harpreet ji for joining us. थैंक यू मैम। And thank you so much, Ekta ji, for inviting me again and looking forward to such more good sessions. I hope our viewers will feel, this information was quite helpful. And Yes, yes, जैसे आपने शेयर करा, तो हम आगे भी और सेशंस के लिए तैयार हैं, ठीक है। बिल्कुल एंड बिल्कुल. कोई भी डाइट कंसल्टेशन के लिए, या आपको लगे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए था, दे कैन ऑलवेज शेयर। Thank you so much. Ji. Thank you, Harpreet, for joining us. थैंक यू मैम। थैंक यू।